Hello, kids. Today we start with our next chapter, that is living and non-living things. As we all know that there are a lot of diversity present around us. Some things are living and some things are non-living. So we need to classify them. But how we can classify them? We can study in this chapter. So on the first page, you can see that a class is going on and the students are asking so many questions. Jigyasa and Chanamya have come to Vigyanik Chacha with a query. Let's read it. Jigyasa says, I have a teddy bear and Chanamya has Bunny, a rabbit. My dear teddy bear does not need food and water, but Bunny does. Next, Chanamya said, also her teddy bear cannot do things which my bunny can do. So, the Vigyanik Chacha said that this is because your bunny is alive, but her teddy bear is not. Have you understood something, students? The Vigyanik Chacha saying that the rabbit is alive. The rabbit is a living thing, but the bunny is a non-living thing. Things that are alive like birds, animals, fish, insect, plants, humans, all are called living things. Student, जो भी चीज़ें जीती हैं, जो भी चीज़ें alive है, जिंदा हैं, उनको हम बोलते हैं living things. And things that are not alive, जैसे कि जो जिंदा नहीं है, like table, water bottle, lunch box, stone and many other things. जो जिंदा नहीं है उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. सो नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या तो वो नेचुरली होती हैं या उनको इंसान खुद बनाते हैं. थिंग्स अराउंड अस, हमारे तरफ चारों तरफ जो थिंग्स होती हैं बेटा, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स and non-living things. So we will study the characteristics of living and non-living things in detail. So you can see that Chinamya and Jigyasa both are looking at the aquarium and they are asking questions. Jigyasa says, Chinamya, look at these, the fish, how fast it swims. Then Chinamya said, that's nice. But Jigyasa, how do these fish get air? Do you give some food to the fish? They both are asking question to each other. Is it a fish living thing? What does a fish need to stay alive? All these questions are roaming around in their heads. So, yes, fish is a living thing, so it need air, water, food to stay alive. Yes, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एयर, वाटर, फूड चाहिए होता है जीने के लिए. लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड. बेटा जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनको एयर, वाटर, फूड चाहिए होता है जीने के लिए. इफ़ दे डू नॉट गेट एयर, इनफ फूड, इनफ, देन दे विल डाई. अगर जैसे हमें खाना नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नो, वी कैन नॉट एबल टू लिव. सो सेम लाइक प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर, वाटर, सॉइल टू लिव प्रॉपरली. एंड वाटर हेल्प अस टू गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. वाटर क्या करता है? किसी भी प्लांट की हेल्प करता है अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेने के लिए. देयर इज़ अ बटरफ्लाई इन द बास्केट. You can see, students, there is a butterfly in the basket. The lid of the basket has holes for the butterfly to breathe. Butterfly के breathe करने के लिए क्या है, बास्केट के ऊपर छोटे छोटे होल्स बनाए गए हैं. तो जिज्ञासा says the butterfly can breathe but cannot find its food inside, so it will die. जिज्ञासा क्या कह रही है कि बटरफ्लाई ब्रीथ तो करेगी लेकिन उनको खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगी. Then Chinamya said we must open the lid and let it fly away. तो चिनम्या क्या कहता है कि हमें इसकी बास्केट को ओपन कर देना चाहिए और उसको फ्लाई कर देना चाहिए. तो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. क्या समझ में आया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा उनको जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अ ग्रास ओपर ईट लीव्स. ग्रास ओपर क्या कर रहा है? लीव्स को खा रहा है जिंदा रहने के लिए. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स टू स्टे अलाइव. और कुछ एनिमल्स क्या कर रहे हैं? जिंदा रहने के लिए दूसरे एनिमल्स को एज ए फूड खा रहे हैं. लुक एट द चॉक बॉक्स. मैनी चॉक पीसेस आर प्लेस्ड. बॉक्स में क्या है? बहुत सारे चॉक पीसेस हैं लेकिन उस बॉक्स में कहीं भी कोई भी होल नहीं है एयर के ट्रांसफ़र के लिए. सो स्टूडेंट्स, चॉक आर नॉन लिविंग थिंग्स. दे डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो. दे आर अलाइव, they are not alive, so they do not these things.
बट लिविंग थिंग्स ग्रो. सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो. जो चीज़ें ग्रो करती हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको ग्रो नहीं करना होता. जैसे आप देख सकते हैं क्लास बोर्ड. जिज्ञासा says that this class board is still of the same size. आज भी क्लास बोर्ड इसी साइज़ का है, इसी शेप का है. इट वॉज लास्ट ईयर, जैसा कि वो लास्ट ईयर था जब हम क्लास 2 में थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं. तो जिज्ञासा का कहने का क्या मतलब है कि जिज्ञासा बिकम टॉलर, वो बड़ी हो गई है, बिकॉज शी इज़ लिविंग बिंग. सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करती. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा वो ग्रो करती हैं, मीन्स उनकी हाइट, वेट और साइज़ में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, इंक्रीज़ होती है, उनकी अपीयरेंस चेंज होती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स सेम साइज़ की रहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, अर्लियर आई वॉज अ स्मॉल बेबी, मैं एक स्मॉल बेबी था. एज आई ग्रो आई विल बिकम अ मैन. जैसे ही मैं ग्रो हुआ मैं एक मैन बन गया. देन एंड ओल्डर. सेम विद द सीड. अ सीड ग्रो इनटू एन अडल्ट पार्ट. कोई भी छोटा सा बीज होता है, आप देख सकते हो वो कितना बड़ा एक प्लांट, फिर एक ट्री बन जाता है. स्मॉल सी बर्ड से, छोटी सी बर्ड से क्या होता है, वो धीरे 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 वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है. नेक्स्ट इज़ लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ. एज वी ऑल नो दैट जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं. क्यों? फूड के लिए, एयर, वाटर, शेल्टर, सनलाइट, सभी चीज़ों के लिए जाते हैं. और कुछ एनिमल तो अपने लिम्स का यूज़ करके मूव भी कर जाते हैं. बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट जो होते हैं फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स. विंग्स का यूज़ करके फ्लाई कर जाते हैं. फिश जो होती है वो स्विम कर जाती है फिन्स का यूज़ करके. ह्यूमन बीइंग वॉक करते हैं लेग्स का यूज़ करके. ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं बेटा वो खुद चलती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकती. लाइक इफ़ आई डोंट पुश इट, जिज्ञासा इज थिंकिंग कि इफ़ आई डोंट पुश इट कैन दिस टेबल मूव बाय इटसेल्फ. क्या ये टेबल अपने आप चल सकती है? नो बेटा, लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकती. यू नीड टू पुश और पुल देम. आप उनको पुश और पुल करना पड़ेगा मूव करने के लिए. लेकिन जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप मूव करती हैं. नेक्स्ट इज़ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट. बाहर का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा लिविंग थिंग्स वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे. जैसे अभी आपके आसपास गर्मी होगी तो आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे. सर्दियों में, विंटर्स में आप क्या करते हो, वुलन क्लोथ्स पहनते हो क्योंकि आपको ठंड लगती है. तो बाहर जैसा भी आपका एनवायरनमेंट होता है आप उसको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को कवर करते हैं. लाइक रोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द सन. सन में क्या कर रहा है रोहन? फुटबॉल खेल रहा है. तो उसको क्या आ रहे हैं? पसीने, स्वेटिंग. ही इज़ स्वेटिंग. दिख रहा है ना कि वो स्वेट कर रहा है. विल इज बॉल ऑल्सो फील द सेम? देखो बॉल भी है, लेकिन क्या बॉल को पसीने आ रहे हैं? नो, बिकॉज बॉल इज़ ए नॉन लिविंग थिंग एंड रोहन इज़ ए लिविंग थिंग. ही इज़ perspiring बिकॉज his बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द हीट. बेटा हीट को उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं. लेकिन उसकी बॉल को फील ही नहीं हो रहा कुछ भी, तो इसलिए वो भी परस्पायर नहीं कर रही, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. प्लांट्स एंड एनिमल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द सराउंडिंग. जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के बेसिस को ही रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, टच मी नॉट एक प्लांट होता है, उसको आप देख सकते हो. टच मी नॉट प्लांट लीव, आप देखा आपने टच मी नॉट प्लांट लीव्स की ऐसी लीव्स होती हैं. ये लीव्स जब आप इनको टच करते हो तो आप राइट हैंड साइड देख सकते हो ये क्या कर लेते हैं, बिल्कुल क्लोज हो जाती है. जब भी आप इन टच मी लीव्स को टच करोगे तो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी, लेकिन जब आप इनको टच नहीं करोगे तो ये बिल्कुल ओपन रहती है. तो ऑल्सो प्लांट रिस्पॉन्ड इन द चेंज इन द सराउंडिंग. Similarly, students like sunflower plant respond to the sunlight by turning its flower towards sunlight. आपने देखा होगा जितने भी सनफ्लावर होते हैं उनका जो फ्लावर होता है उसका फेस हमेशा सन की साइड होता है, बिकॉज वो सनलाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड दैम. नॉन लिविंग थिंग्स के चारों तरफ कोई भी चेंज होता रहे आप वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. यू कैन सी इन द पिक्चर सनफ्लावर फील्ड में यू कैन सी ऑल द फ्लावर फेसिंग इन द वन डायरेक्शन. सारे फ्लावर एक ही डायरेक्शन में फेस करें. जहाँ कौन सी डायरेक्शन में? जहाँ
सन है, क्योंकि जो भी सनफ्लावर होते हैं बेटा वो सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमें पता चला यूजिंग आवर सेंसेस, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, दे ऑल हेल्प अस। ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारे आसपास के माहौल को रिस्पॉन्ड करवाने में। ठीक है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं। जिज्ञासा and his Chachaji is sitting. Jigyasa says, Chacha, after I eat an apple, it is gone. How do I keep getting more and more apple? कि चाचा जी जब मैंने एक एप्पल खा लिया तो वो तो मेरे पेट में चला गया, तो और ज़्यादा एप्पल कहाँ से आते हैं। देन चाचा जी रिप्लाइड, चाचा जी कहते हैं, जिज्ञासा हैव यू नोटिस द सीड ऑफ एन एप्पल? क्या आपने सीड देखा है एप्पल का? जब हम इन सीड को सॉइल में दबा देते हैं तो दे जर्मिनेट, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और दोबारा ग्रो करते हैं एक न्यू प्लांट में, और उस न्यू प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, एप्पल्स मिलते हैं। एज यू कैन सी प्लांट्स जर्नली रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। आप सबको पता है कि कोई भी न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सीड्स की। As you all know that students, living things produce young ones of their own kind. This is called reproduction. This process is called reproduction. Animal reproduce by laying egg or giving birth to their young ones. आप सबको पता है कि reproduction is a process जिसमें कि कोई भी living things अपने young one को produce करता है by laying egg, या तो अंडे देता है या फिर directly birth of a baby take place. जैसे कि you can see in the picture, birds lay egg to reproduce. क्या करते हैं birds, जितने भी birds होते हैं वो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। फर्स्ट इज अ हैन लेज एग। नेक्स्ट इज एलिफेंट एंड काउ गिव बर्थ टू यंग वंस। और एलिफेंट और काउ क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रेड फिनिश द चैप्टर बाय टेकिंग अ स्मॉल समरी. That's our surrounding is divided into two groups, living things and non-living things. Living things are alive, जो जिंदा है. Non-living things are do not live, जो जिंदा नहीं है. Living things कौन कौन से होती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आपकी बाकी चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी लिविंग थिंग्स की, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट, दे कैन मूव बाय देमसेल्फ. वाइल जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना वो ग्रो करती हैं, ना अपने आप मूव करती हैं, ना ब्रीथ करती हैं, ना खाती हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करती हैं. सो बाय.